Very good evening to all. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. आप लोगों के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप में होती हुई एक्टिविटी है उसके चलते हुए मुझे लगा कि एक शायद डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोगों का होना चाहिए। तो लकीली आज हमारे साथ हमारे एक काउंसलर हैं अश्लेष सक्सेना जी हमारे साथ हैं, आप लोग हैं और हम लोग वेट करेंगे कि और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पहले एक फॉर्मल आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे कि आप एमबीए प्रोग्राम कर रहे हैं इग्नू का। इससे पहले आप लोगों का बैकग्राउंड बताएंगे, लाइक ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Hello, sir. I'm Khushi हाँ, Sharma and I've ये done my graduation from Dayal Singh only in ओके BSc Zoology last year. ओके ओके ओके। सो हुज So I was नेक्स्ट? in your batch. ओके ओके, हुज नेक्स्ट आफ्टर खुशी? हुज नेक्स्ट? in discussion we can have one option, you raise your hand, I can call you, or I uh, call your name and you can volunteer to introduce yourself. As per my screen order, I'm asking Dr. Hanshika Singhal. Can you please introduce yourself? Dr. Hanshika Singhal. I'm moving to Anima Singh. Hello, sir. Anima Good. Singh, you can. Yes, please. Sir, I'm Anima Singh. I have done my graduation from Amity University from the course BBLLB. Okay, so good. So next, Kavya. Hi sir, my name is Kavya Navneet Shukla and I've done my graduation from Galgotias University, BBA in HR. Okay, good. Thank So you. next Khushi. Hello, sir. I'm Khushi Khushi Sharma, please. Sharma. I've done my graduation from Dayal Singh in BSc Zoology. Okay, okay, good. Okay, sorry, I repeated your name. Krishna Davar. Krishna Davar. Moving to Akanksha. Greetings, sir. My name is Akansha Singh. I am a BTech graduate, Electronics and Communication Engineering from Guru Gobind Singh Indraprasth University. Okay, good. So, Tish. Please, would you like to introduce yourself? Hanshika, you just recently we have, so it now turn comes to you. Would you like to introduce yourself? Please unmute yourself. Good evening, everyone. My name is Hansika Singhal, and I'm currently pursuing MBA program from the Singh College, and I'm currently preparing for my examinations also that are due in short span of time. And this is the first time that I'm reading up all the finance subjects and accounting. Everything is new for me,
So looking forward to a great learning experience, sir. Thank you so much. What about your graduation subject? Sir, my graduation was in psychology. My graduation and post-graduation and PhD, all three are in psychology. And my specialization is organizational psychology. ओके ओके एक्सीलेंट एक्सीलेंट. सो ये जो मैंने इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज की थी, बेसिकली ये एक्सरसाइज इसलिए की थी ताकि मुझे एक जनरल आइडिया लगे कि हमारे पास क्या डाइवर्स ग्रुप है. मेरे साथ अभी हमारे एक एकेडमिक काउंसलर अश्लेष सक्सेना जी हैं. तो जैसा कि प्रोसीजरल सीक्वेंस है, तो मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें और सबसे आखिर में मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा मीन टाइम. तो अश्लेष जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम्यूट कर सकते हैं तो प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए ब्रीफली. Thanks, Dr. Arya. This is Ashlesh Saxena. By profession, I'm an engineer and I did my MBA in Operations Management from IGNOU itself. And for Dayal Singh College, I'm associated for last approximately 6 years. And with IGNOU, I'm associated for the last 10 years. I was senior consultant for providing education to Africa as a continent. So I was working with IGNOU as senior consultant, Pan Africa e-network project. So right now I'm with Dayal Singh College. I'm looking after operations field. थैंक यू सर. सो अभी लास्ट हमारे साथ ज्वाइन किया है रोहित ने. रोहित बेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी बेसिकली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो आप लोग आपने जस्ट अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है ग्रुप को. तो वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? स्पेसिफिकली आपने ग्रेजुएशन क्या किया वो आप शेयर करेंगे? Hello. हाँ जी बोलिए. Yes, sir. Wait a minute. I'm joining. Bluetooth. Wait. Yes, sir. I'm audible. Yes, quite audible. Yes, sir. What are you asking? मेरा एक जनरल सवाल है सबसे पहले कि ये जानने के लिए कि हमारा ग्रुप किस तरह का है, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. स्पेसिफिकली आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था वो जानना चाहता हूँ मैं. Yes, sir. I'm basically from Faridabad and I have completed my graduation from BCom Computer Application. ओके गुड एक्सीलेंट. सो हम लोगों का इंट्रोडक्शन वाली एक्सरसाइज क्लोज हो गई है. मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा. मीन टाइम आप अपने आप को म्यूट मोड में रखेंगे और जब आपको क्वेरी करनी होगी तो आप अपना हैंड रेज करेंगे. जो भी आपके डाउट हैं आप प्लीज सीक्वेंशली पूछ लीजिएगा. हम लोग उसको सभी को अटेंड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को लेकर अपने डेट्स को लेकर जो भी डाउट्स हैं, तो क्योंकि ये रहते हैं तो उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे. तो आप लोग हैंड तो मैं आपको इंडिविजुअली कॉल करूंगा और इंश्योर करूंगा जब तक आपके डाउट पूरे एड्रेस नहीं होंगे मतलब हम लोग अवेलेबल रहेंगे. ठीक है. और अगर ये सेशन में कोई रहती है किसी वजह से तो सब्सिक्वेंटली और सेशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. कोई बड़ा इशू नहीं है. जहाँ तक मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं डॉक्टर पीवी आर्य हूँ. मैं आपके इस सेंटर का कोऑर्डिनेटर हूँ. और इस सेंटर को जैसे कि आप लोकेशन से जानते हैं, कोड से जानते हैं, उसमें आप लोगों को डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसे अभी एक हमारे साथी ने इंट्रोड्यूस किया वो फरीदाबाद से रहते हैं, बाकी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया. मैं उम्मीद करता हूँ वो डिफरेंट प्लेसेस को रहते होंगे. जो ये पेंडेमिक का सिनेरियो है उसमें चलते हुए आप लोग बहुत दूर दूर से रहते हुए भी शायद एक ही जगह पर कनेक्टेड हैं. और हमारी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट देखिए कि अभी शायद अपने जो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसमें एंगेज होते हुए भी हम शायद अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं. हमारे सेंटर को लेकर अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए कि किस किस तरह के हम लोग प्रोग्राम्स रन करते हैं, वो एक्सप्लोर करने की बात है, तो उसको कोशिश करके एक सेंटर की साइट है जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर विजिबल है, उसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पर सेंटर में किस किस तरह के प्रोग्राम है उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया गया होगा.
आप लोगों का हमसे जुड़ने का जो कारण है, मेन कारण है कि आपने अपनी पसंद के किसी कोर्स में को सेलेक्ट किया, अपनी हायर एजुकेशन के ऑप्शन को आपने एक्सरसाइज करते हुए इग्नू को चूज़ किया और चूज़ करने के बाद आपने अपनी पसंद के कोर्स को प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए, एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए या किसी भी पर्पज़ से जो भी आपने डिसाइड किया, उन ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए आपने इग्नू को सेलेक्ट किया और अपनी पढ़ाई आगे रखी, जारी की। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ये डिसाइड जो डिसीजन लिया पूरा प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया या पूरा डिसीजन प्लान वे में किया। कुछ लोगों के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, उन्होंने शायद एक्सीडेंटल डिसीजन लिया है। किसी भी स्थिति में आपको एक चीज़ को रियलाइज करना होगा कि जो इग्नू का सिस्टम है वो इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उससे ये अलग सिस्टम है। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप कॉलेज में जाएँगे, आपकी क्लासेस होंगी, आपको नोट्स दिए जाएँगे या आपको बुक सजेस्ट की जाएँगी कि आप उस बुक में जाइए या टीचर ने नोट्स दिए और उसके बाद इंडिविजुअल टॉपिक को कवर करने के लिए एक अच्छा खासा लंबा समय दिया जाएगा। उसके कंट्ररी जो इग्नू का सिस्टम है, इग्नू के सिस्टम में क्योंकि ये नॉन फॉर्मल सिस्टम है, ये एक डिस्टेंस एजुकेशन मोड है और ये इनफैक्ट एक तरह का हाइब्रिड सिस्टम है। आमतौर पे जो डिस्टेंस लर्निंग का मोड होता है, उसमें शायद टीचर से इंटरेक्शन होने का कंपोनेंट बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ इग्नू सिस्टम में वो कंपोनेंट भी है और उस कंपोनेंट में मैंने आपको अपने अभी एक कलीग से इंट्रोड्यूस किया, जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो कि प्रोफेशनल उनको एक्सपीरियंस है, इग्नू से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंट भी रहे हैं। उससे पहले आपकी शायद एक अभी एमएमपीसी 04 की काउंसलिंग हुई थी, उसमें हमारे साथ एक बैंकर एसोसिएट थे। तो इसी तरह से दूसरा आपने अपने जो साथी नोटिस किए, आपके साथी भी डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, आपके साथी जो हैं वो बीकॉम कंप्यूटर साइंस के भी होंगे, बीबीए आरएल के भी होंगे, मतलब बीबीए रिटेल से होंगे। उसके बाद कुछ साथी हैं जिनके जो एजुकेशन पीजी कर चुके हैं या पीएचडी कर चुके हैं, उसके बाद अपनी एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए, ऐड करने के लिए या किसी और पर्पज से हमारे इस प्रोग्राम को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ की खास बात यह है इग्नू सिस्टम की, आपके स्टूडेंट भी डाइवर्स हो सकते हैं, उसी तरह से आपके टीचर भी डाइवर्स हो सकते हैं। आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इग्नू सिस्टम की तरफ से सबसे पहली चीज़ आपको आपका स्टडी मटेरियल दिया जाता है। जो भी आपके प्रोग्राम हैं, पहले तो समझना होगा कि जिसमें आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हमें उससे फ़ैमिलियर होना होगा। पहली टर्मिनोलॉजी, जिस डिग्री के लिए आपने एडमिशन लिया है, उसको प्रोग्राम कहा जाता है यहाँ पर। तो हमें प्रोग्राम समझना होगा कि योर प्रोग्राम इज़ एमबीए। इसको एमपी भी कहते हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, एमबीए भी कहते हैं। और इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट को कहा जाता है कोर्सेज़। तो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे है, तो यहाँ पर आपको कोर्स और प्रोग्राम में डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंट कोर्सेज कम टुगेदर टू फॉर्म अ डिग्री और अ प्रोग्राम। तो आपके एमबीए प्रोग्राम के अंदर जो कोर्सेज हैं उनका नाम है एमएमपीसी पीसी 0 एंड ऑनवर्ड्स। आप सेलेक्ट करते हैं सिस्टम में। जैसा आप जानते हैं कि एडमिशन 2 बार होता है। एक सेशन को दोनों बार होने वाले अलग-अलग एडमिशन को अलग-अलग सेशन कहा जाता है। एक सेशन को जनवरी सेशन कहा जाता है, दूसरे सेशन को जुलाई सेशन कहा जाता है। तो जब साल में 2 बार एडमिशन होते हैं तो डेफ़िनेटली अगर आपका प्रोग्राम सेमेस्टर बेस्ड है तो एग्ज़ाम भी यहाँ 2 बार ही होते हैं। अगर आपने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और जनवरी में एडमिशन लिया है, तो आपके लिए पहली बार एग्ज़ाम जून में होगा। और अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो आपके लिए पहली बार एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। और यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन के लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, उसको कहा जाता है टीईई, टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन। तो हमें इस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि किस बार एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि अभी हमारे पास जानते हैं कि बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल नहीं है बच्चों में, तो सभी सीक्वेंस डिस्टर्ब्ड हैं, सब और जो आप साइकिल है वो डिस्टर्ब्ड के चलिएगा। तो उसके चलते हुए जो अभी हमारे मार्च में एग्ज़ाम आपके प्रपोज़्ड हैं, ये एग्ज़ाम जो सेशन है उसको कहा जा रहा है टीईई दिसंबर 2021। तो ये एग्ज़ाम है दिसंबर 21 के। इन सब के साथ-साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आपके मन में कोई प्रश्न आए
तो उस प्रश्न का उत्तर आपको जो है किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स से मिलेगा, और वो ऑथेंटिक सोर्स मैं, आप, ये, वो ना होकर इग्नू की वेबसाइट होगी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर अवेलेबल है दैट इज द ओनली ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, बाकी सब अफवाह हो सकती है, उस पर ध्यान ना दें। आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम को लेकर आपके मन में प्रश्न होगा, तो उस प्रोग्राम के को लेकर जो आपका प्रश्न है उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जिस डॉक्यूमेंट को पढ़ना होगा उसको कहेंगे प्रोग्राम गाइड। एमबीए को लेकर एक प्रोग्राम गाइड होती है जिसमें पूरे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, क्या कंडीशंस हैं उनके बारे में, आपके प्रोग्राम के इंचार्ज कौन है, कोऑर्डिनेटर कौन है, वो उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोग्राम गाइड में दी हुई है। और आपको इंट्रोड्यूस की गई है, वो ये ध्यान में रखकर। यस प्लीज। Sorry to interrupt. I wanted to confirm where could we find that program guide? प्रोग्राम गाइड आमतौर जो आपका स्टडी मटेरियल आता है उसके साथ प्रोग्राम गाइड आती है, और अगर आपके साथ जैसा कि स्टडी मटेरियल के साथ ही प्रोग्राम गाइड नहीं आई है तो उसके लिए ऑप्शन आपके पास देखिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो जो मैं आपको स्टैंडर्ड ऑपरेशन बता रहा हूँ जैसे कि हमारे पास होते भी थे कि स्ट्रक्चर उसमें आता था, तो सबसे पहले आप ई ज्ञान कोश पर सर्च करिए, ई ज्ञान कोश, और आपका जो भी प्रोग्राम है लाइक एमबीए आप सर्च करिएगा तो उससे जितना भी स्टडी मटेरियल है वो वहां पर अवेलेबल होता है। इन केस किसी वजह से ये प्रोग्राम गाइड वहां अपडेटेड नहीं है तो आप या तो रीजनल सेंटर को या आपके जो आपका इग्नू की वेबसाइट पर सबसे पहले जो आपके प्रोग्राम इंचार्ज हैं इसको प्रोग्राम को लेकर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ ये प्रोग्राम गाइड आपके इग्नू की वेबसाइट पर जहां पर इसके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है वहां पर है। अगर ई ज्ञान कोश में नहीं है तो इग्नू की वेबसाइट पर है, जहां पर आपका एमबीए प्रोग्राम है, एमबीए न्यू प्रोग्राम है, आप सर्च करोगे तो वहां है ये। मैं रिकॉल करता हूँ है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको पढ़ना चाहिए, केयरफुली पढ़ना चाहिए, वो है प्रोग्राम गाइड। प्रोग्राम गाइड पढ़ने के बाद आपको आपके पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पता लगेगा, आपको क्या क्या क्रेडिट अर्न करने हैं, आपके पास क्या ऑप्शनल होंगे वो आपको तो आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा अपने प्रोग्राम के बारे में। देन उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। जैसा कि ये प्रोग्राम के इंडिविजुअल कोर्स को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो कोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होगा जिसको हम कहेंगे टर्म एंड एग्जामिनेशन जिसकी वेटेज होती है 70%। दूसरा कंपोनेंट होता है असाइनमेंट जिसकी वेटेज होती है 30%। तो आपको दोनों कंपोनेंट मिलाकर पास करने होंगे तब आपको कोर्स कंप्लीट होगा। जहां तक फाइनल एग्जामिनेशन और दोनों की इंटरेस्टिंग बात है, दोनों के लिए जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 ही दिखाई देते हैं। असाइनमेंट भी आपको 100 मार्क्स का ही दिखाई देता है जिसमें आपको ग्रेड आते हैं। आपके जो एग्जामिनेशन है उसके भी आपको 100 मार्क्स ही दिखाई देते हैं जो अल्टीमेटली ग्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन है जिसको टर्म एंड एग्जामिनेशन कहा जाता है उसके 100 मार्क्स को 70 के स्केल पर कन्वर्ट किया जाता है, और जो आपके असाइनमेंट है उसके 100 मार्क्स को या जो ग्रेड है उसको 30 के स्केल पर कन्वर्ट किया जाता है, दोनों को ऐड कर लिया जाता है। और जो आपके स्कोर आता है या जो आपके मार्किंग आती है वो ग्रेडिंग में आती है ABCD के फॉर्मेट में आती है। और आप डिटेल में देखेंगे तो आपको प्रोग्राम गाइड में इसका पूरा स्ट्रक्चर पूरी डिटेल दी होगी, और अगर कोई डाउट आता है तो आप उसको अरेंज कर लीजिए, हम लोग उसको डेफिनेटली फिर एक्सप्लोर करेंगे। जहाँ तक अगला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगला इंटरेस्टिंग चीज है इग्नू के बारे में। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया और कोई अनफोर्सीन रीजन है जिसके चलते हुए आप एग्जाम नहीं दे पाए, नो प्रॉब्लम। आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मींस आप सेकेंड सेमेस्टर की फीस दे दीजिए, सेकेंड सेमेस्टर के अपने जो कोर्सेज हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, आप सेकेंड सेमेस्टर में आ गए। कोई अनफोर्सीन रीजन है आप सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम भी नहीं दे पाए, आप थर्ड सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए। कोई अनफॉर्चुनेट रीजन रहा आप थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम भी नहीं दे पाए, फोर्थ सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फोर्थ सेमेस्टर में आ गए। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि आपके पास जो कोर्सेज हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर के क्लियर है, ना सेकंड के, ना थर्ड के, आप फोर्थ में आ गए।
और आप पूरी मेहनत करते हैं 4th सेमेस्टर में, आप न केवल 4th सेमेस्टर के बल्कि 1st, 2nd, 3rd के तीनों सेमेस्टर के एग्जाम देना चाहते हैं और ऐसा दे सकते हैं, तो आप चारों सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, टी एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए और चारों के चारों सेमेस्टर के आप एग्जाम एक ही साथ दे दीजिए। ठीक है, आपने तैयारी अच्छा किया था और आपने एग्जाम्स क्लियर कर लिए, तो विद इन मिनिमम ड्यूरेशन आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर I had किसी one doubt वजह से regarding this. जी बताइए। So I could not fill the exam for this semester. So although I submitted my assignments for this. So I read it online that if I have submitted my assignments, I can give my term and exam in the second semester as well for the first semester. Do I have to again submit the first semester assignments? ओके ओके, तो अगला जो आपका एक और इसको मैं दो आंसर हैं इसमें मेरे पास कि आपको असाइनमेंट एक बार आपने सबमिट कर दिए और उस असाइनमेंट में आप उसको आपने क्लियर कर लिया, मतलब उसमें सक्सेसफुल रहे, तो वो असाइनमेंट आपको दोबारा सबमिट नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। मतलब उसको अगर आप चाहकर भी सबमिट कर देंगे और हम उसको इवेलुएट करा के आगे फॉरवर्ड भी कर देंगे तो देयर इज नो यूज, वो एक बार असाइनमेंट चेक हो गया, दोबारा नहीं आएगा उसके मार्क्स। ठीक है। दूसरा अगर आपने अभी असाइनमेंट सबमिट किया है, एग्जाम नहीं दिया है, तो नो नीड नॉट टू वरी, दीज ग्रेड विल बी देयर टिल द एंड ऑफ योर प्रोग्राम। आपको आप जो फाइनल एग्जाम है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, आप फर्स्ट सेमेस्टर में दें, सेकंड में दें, थर्ड में दें, फोर्थ में दें, आपके ये मार्क्स वहाँ रहेंगे और यही जो ग्रेड है आपके साथ कैरी करेंगी। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरी सिचुएशन में आपको बताता हूँ, उस सिचुएशन में आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए सपोज, लेकिन आपने टर्म एंड एग्जामिनेशन दे दिया, तो आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के जो ग्रेड है वो कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे और जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो असाइनमेंट के जो भी ग्रेड्स होंगे उसके साथ ऐड हो जाएंगे। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, बहुत फ्लेक्सिबल है। इज इट ओके? Yes, it is Okay. okay. I got the acknowledgement on the mail. Your assignments have been submitted, but when I'm checking it online, the status of my assignments, it is showing that no record is found. ओके, सो उसके लिए क्वेरी इस तरह की है कि अभी मैंने रिसेंटली देखिए, मैं अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये कि हमारी तरफ से कोशिश ये है सेंटर की तरफ से कि जो स्टूडेंट्स की ग्रीवेंस है मिनिमम हो और एरर फ्री उसमें काम करें। तो उसके चलते हुए नई नई चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, नई अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो एक हमारा और आपका इंटरेक्शन करने के लिए जो इग्नू सिस्टम की तरफ से ऑप्शन हुआ करता था, वो हुआ करता था इग्नू का अपने स्टडी सेंटर का नोटिस बोर्ड। तो हमने अपने नोटिस बोर्ड पे कुछ लगा दिया, आपने उसको देख लिया, वो आप तक पहुंच गया, दैट्स इट। लेकिन वो आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इतना फिजिबल नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने सेंटर की एक अलग से वेबसाइट बनाई, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं। तो सिमिलरली एक अपना यूट्यूब चैनल हम लोगों ने बना, इसमें जो हम लोग कर रहे हैं शायद इसको भी अपलोड करेंगे ताकि जनरल इंट्रोडक्शन हो जाए। तो आपकी ये क्वेरी है, बहुत सिंपल क्वेरी है। एक्चुअली क्या होता है कि जो असाइनमेंट है उसका पूरा एक साइकिल होता है। आपने मुझे सबमिट किया या मतलब सेंटर को सबमिट किया, हमने उसको इवेलुएट किया और इवेलुएट होने के यूनिवर्सिटी जाता है। तो जो आपने स्टेटस चेक किया है वो यूनिवर्सिटी की साइट पे आपने चेक किया है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की साइट पर वो जब अपडेट होगा, जब हमारे यहाँ से चेक होकर उधर चला जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें अभी टाइम लग रहा था और आप लोगों की तरफ से बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक 5 जनवरी 2022 तक जो भी असाइनमेंट सेंटर को सबमिट हुए थे एंड दे आर स्टिल इन प्रोसेस किसी भी स्टेज में, उनकी एक लिस्ट मैंने अपने सेंटर की वेबसाइट पे अपडेट किया है, जो शायद मैंने कल परसों मैसेज शेयर किया था। तो आप हमारे जो सेंटर की वेबसाइट है उसमें असाइनमेंट सबमिशन वाले सेक्शन में आप जाइएगा, वहाँ पर उस लिस्ट में आपको अपना नाम दिखाई दे जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि ये लिस्ट ओनली
5 जनवरी 2022 तक के सबमिशंस की है, वो भी उन असाइनमेंट्स की जो सेंटर को सबमिट किए हैं, ठीक है। इसके बाद चूंकि लास्ट डेट वगैरह एक्सटेंड हो गई थी, तो अभी और भी असाइनमेंट्स आए हैं, तो उनकी लिस्ट में सब्सिक्वेंटली अपडेट करेंगे, वो भी टाइम में है। जब हम यहाँ से असाइनमेंट सबमिट करेंगे, असाइनमेंट्स इवेलुएट कराकर यूनिवर्सिटी को भेज देंगे, तभी वो स्टेटस अपडेट आएगा जो आप चेक कर रहे हो, ठीक है। और जब तक I हमने वहाँ think भेजा ही नहीं है, that तो वहाँ पर no, I didn't check on that was sent to the WhatsApp group, but there was no name of mine. That is why I went. आपकी आवाज इको कर रही है, आपकी आवाज किसी तरह से शायद। I'm saying I checked my name in the WhatsApp list. It was not there. Or I submitted my assignment on after 5th, I think. Yes, You 5th or before 5th? 5th of 5th February, I submitted. Oh, okay. So just reconnect my statement. This list is up to only 5th January 2022. 5 जनवरी 2022। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी की भी अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं। आप इसको मैनुअली ऑपरेट करके देखेंगे कि भाई वहाँ पर इतने सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट इकट्ठी की, कंपाइल किया, उसको कनेक्ट करके अपडेट करना, तो उसमें एक लिमिटेशन होती है। हालांकि ये ऐसी कोई हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग करें, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि इस तरह से लिस्ट काफी लोग पैनिक नहीं है, तो उस चीज को ध्यान में हुए लिस्ट कि आप जानें कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आमतौर पे इग्नू सिस्टम जो है अपनी लास्ट डेट्स को लेकर या डेडलाइंस को लेकर लंबे समय तक स्ट्रिक्ट रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आई है। पहले क्या होता था कि जैसे जितने मैंने आपको फ्लेक्सिबिलिटी बताई है कि जैसे असाइनमेंट अभी सबमिट करो, एग्जाम बाद में दो, आपकी मर्जी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक कंडीशन थी कि आप पहले एग्जाम, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है तभी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाओगे। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अब आई है, पहले नहीं थी। तो इसी तरह से जैसे असाइनमेंट्स की डेडलाइन है अभी, पहले हम लोगों के लिए डेडलाइन थी कि भाई 5 जनवरी के आसपास की शायद डेट्स थी, तो हम लोगों ने उसके हिसाब से प्लानिंग की थी। लेकिन अगर डेट बढ़ गई है, रिसेंट डेट 5 फरवरी रही है, तो ये 5 फरवरी तक का डाटा इकट्ठा करना, टेबुलेट करना और उसको अपडेट करने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए वो अपडेटेड नहीं है, उसके लिए वेट कर लीजिए, वो अपडेट कर देंगे। बाकी जो आप फॉर्म सबमिट किया था शायद उसकी कॉपी आपके पास आई होगी। और हमारी भी कोशिश ये है कि देखिए, अगर सिस्टम को एरर, अगर हमारे सिस्टम में एरर रहेगा तो हम भी परेशान रहेंगे। और इतने सारे एक सेशन में आप रियलाइज करेंगे कि ओवर 15-20,000 के आसपास असाइनमेंट्स आते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि उसको जो अटेंड करें वो एरर फ्री मोड में करें, मतलब किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, ना आपको प्रॉब्लम हो, आपका असाइनमेंट मिसप्लेस ना हो। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि जो एरर रेट है वो होता है कि बहुत फ्रैक्शन में होते हैं कि एक सेशन में 10, 15, 20, 25 असाइनमेंट का इश्यू हो सकता है। उसके लिए हम म्यूचुअली जिम्मेदार हैं, आप भी और हम भी। लाइक बहुत सारे वो हैं कि जैसे आपने असाइनमेंट सबमिट किया, उसमें जो है अपना कोर्स गलत डाल दिया, प्रोग्राम गलत डाल दिया, एनरोलमेंट नंबर की जगह अपने मोबाइल नंबर डाल दिया। ऐसे बहुत सारे केस हैं। जब लोग फिजिकल असाइनमेंट सबमिट करते थे तो अपने असाइनमेंट की जगह अपने दोस्त का फ़ोन नंबर लिख दिया, अपने एनरोलमेंट नंबर की जगह किसी दूसरे का एनरोलमेंट नंबर लिख दिया। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम धीरे-धीरे इवॉल्व हुए हैं। मैंडेटरी आपसे असाइनमेंट की कॉपी लगवाने लगे ताकि आप, तो हम उसको सुधार दें, वरना बाद में परेशान रहेंगे। असाइनमेंट अपलोड किया, वो ड्राइव से शेयर किया, पासवर्ड अपडेट है। तो इस तरह के जो एरर आते हैं उसके काम है 15,000 सेंड की कर रहा हूँ, उसमें से 15-20 अगर केस हैं तो वो आप मैथमेटिक्स के हिसाब से कैलकुलेट करके देखेंगे तो कितना मतलब कितना एरर है मैं नहीं समझता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना उसको एरर फ्री रखने की कोशिश करते हैं। और अभी ऑनलाइन सिस्टम है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है किसी भी तरह की, आपके पास भी इसकी कॉपी आ रही है। और वी आर देयर टू अटेंड ऑल द ग्रीवेंसेस इन द मोस्ट कन्वीनियंट वे, और जल्दी से जल्दी उसको अटेंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है।
मैंने आपको प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में बताया, एग्जाम्स के बारे में बताया, असाइनमेंट के बारे में बताया, इवैल्यूएशन के बारे में बताया। आपको आने वाले टाइम में जो एक प्रॉब्लम हो सकती है वो ये कि आपको अपना कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन चूज करना होगा, तो आप पेपर्स अकॉर्डिंगली अपने जो कोर्सेज हैं अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करिएगा। जो आपका प्रोजेक्ट कंपोनेंट है, प्रोजेक्ट कंपोनेंट के लिए आपको किसी न किसी गाइड की ज़रूरत होगी, जैसे जिस स्पेशलाइजेशन में आप काम करेंगे। यहाँ इंटरेस्टिंग बात है कि आपका जो प्रोजेक्ट गाइड है वो कोई इंडस्ट्री पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आप हमारे सेंटर से किसी को गाइड लें। आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है, आपका मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशन जो भी है, तो उसके बंदे को आप अगर आप इंडस्ट्री में हैं, आप जानते हैं, तो ही और शी कैन बी योर गाइड। और पहले आपकी सिनॉप्सिस जाएगी यूनिवर्सिटी अप्रूवल के लिए। वंस सिनॉप्सिस अप्रूव होती है देन यू अपना प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ असाइनमेंट हम लोग ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करा रहे हैं और वी आर कंफर्टेबल विद दिस सिस्टम। हालांकि हमारे लिए ये कॉस्टली है क्योंकि वो स्पेस वगैरह परचेज करना पड़ता है, बट स्टिल वी आर कंफर्टेबल विद दिस सिस्टम। आने वाले टाइम इसको इसी कोशिश करेंगे। डेडलाइंस जहाँ तक असाइनमेंट की है, मैंने कहा कि ना इससे सुने ना उससे सुने, अफवाही होती है, अपने आप ध्यान दें। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर इग्नू सिस्टम इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि जो उनके स्टूडेंट हैं उनका स्टूडेंट का और सिस्टम का डायरेक्ट इंटरेक्शन जरूरी नहीं है हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनकी तरफ से परफेक्ट देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको असाइनमेंट दिए हुए हैं तो असाइनमेंट के ऊपर जो सबसे पहला पेज होता है शायद उसी पर लास्ट डेट्स लिखी होती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके लिए जो असाइनमेंट्स इशू होंगे उसमें लास्ट डेट शायद 31 मार्च लिखी होती है ना? 15 मार्च या 31 मार्च जो अभी सेकंड सेमेस्टर में होंगे उनके लिए। जहाँ तक आपके दिसंबर वाले होंगे उनके लिए शायद सितंबर या अक्टूबर में कोई डेट लिखी होती है। तो असाइनमेंट के ऊपर लास्ट डेट लिखी होती है, स्पेसिफिकली लिखी होती है कि आप कौन से सेशन के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये क्या लास्ट डेट है। और हर असाइनमेंट की वैलिडिटी होती है। जैसे जो कि आपका तो अभी नया प्रोग्राम चला है तो आपके लिए किसी इमेजिन करिए कि आपने अभी अपने फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट नहीं दिए, सेकंड के नहीं दिए, तो जब आप फाइनल में असाइनमेंट सबमिट करने की कोशिश करेंगे तब आप वो जुलाई 2021 के असाइनमेंट नहीं देंगे। तब उस सेशन में जो असाइनमेंट होंगे वो आप जमा करेंगे। और जैसा कि आपको असाइनमेंट सबमिशन की इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने शेयर की हुई है, उसमें आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी साथ में लगाने होते हैं, अपना आईडी कार्ड भी साथ लगाना होता है। वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मैंने अपने सेंटर की वेबसाइट पे दी हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से मेजर जो डाउट्स होते हैं वो मैंने आपको शेयर किए हैं। इवन देन आपके मन में कोई और डाउट है जो बचते हैं, आप लोग प्लीज यू रेज योर हैंड और मैं इंडिविजुअली उनको टेक अप करूंगा। एक और चीज मैं ऐड करता हूँ, जैसा कि आप लोग नोट करेंगे हमारे साथ कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस लाइक इग्नू सिस्टम में आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि पढ़ना आपको है, और जब आप पढ़ेंगे और आपको उस पढ़ने पर कोई डाउट में लगता है, जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल SLM जो यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस किए हैं ग्रुप ऑफ एकेडमिशियंस के थ्रू, तो अगर उनके पढ़ने के बावजूद आपको लगता है देयर इज स्टिल सम डाउट, तो आप तब उन डाउट्स को अटेंड करने के लिए जो हमारे काउंसलिंग सेशन होते हैं, एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि जैसे मैं आपको MMPC की बात करूं, MMPC में सपोज 1 की बात करता हूं या 2 की या 4, 5 किसी भी उसकी बात करता हूं, तो टेक्निकली शायद हम उस एक कोर्स के लिए एट मैक्स 8 या 10 सेशन लगा सकते हैं, जो जो उसकी प्रोविजंस हैं उनके चलते हुए। तो आप 8 या 10 सेशंस, मतलब एक सेशन 2 घंटे का, 8 या 10 सेशन यानी कि 16 घंटे। तो 12 से 16 या 18 घंटे के आसपास हम उसमें टाइम लगा सकते हैं आपको। तो क्या आप समझ सकते हैं कि कोई भी टीचर 12 घंटे, 16 घंटे या 18 में उसको अगर डायरेक्ट टीचिंग होती है तो पढ़ा सकता है? तो यही डिफरेंस है कि दिस इज नॉट अ डायरेक्ट काउंसलिंग है, और उसके लिए आपको पहले जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको आपको पढ़ना होगा। और कोई भी कारण, जो एक्सक्यूज आपको लगता है कि मेरे पास बुक नहीं पहुंची, या मतलब जो भी रीजंस हैं, तो उन रीजंस के लिए ना आप जिम्मेदार हैं ना मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन उसका नुकसान आपको है।
तो आपको उसको बाईपास करने का तरीका देखना है कि किस तरीके से आप उन मुश्किलों के बावजूद भी अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। जैसा कि आपको ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं, तो एज लॉन्ग एज यू डोंट रिसीव द फिजिकल कॉपी ऑफ योर बुक्स, यू कैन एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन बुक्स। आप उनको पढ़िए, उनसे जो भी आपके डाउट्स हैं उनको नोट कर लीजिए, और जैसे आपके पास फिजिकल बुक्स आती हैं तब आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी आपको ही करना होगा। मतलब मैं अपनी तरफ से यही एडवाइस करूंगा। ये कई बार कैसा नोटिस किया है कि आप लोग वेट करते रहते हैं कि बुक्स आई नहीं, ये हो गया वो हो गया। तो वो सिचुएशन ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, तो आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, और वो सॉल्यूशन यही हो सकता है कि जिन अवेलेबल रिसोर्सेज से आपके पास आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, डेफिनेटली यू एक्सप्लोर दोज रिसोर्सेज। जहाँ तक असाइनमेंट्स के बारे में आपको शायद शेयर किया गया होगा, असाइनमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए। अगर असाइनमेंट कॉपीड होंगे या फिर लगता है कि मार्केट से परचेज करते हैं, ऐसा होता है, तो उसका जो डिसएडवांटेज है वो आपको ही मिल सकता है, क्योंकि हमारे जो कुछ कलीग्स हैं वो ऐसी सिचुएशन में आपको उन असाइनमेंट्स में फेल करने में भी घबराते नहीं हैं। तो अगर ऐसी कोई कैजुअलिटी होगी उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, और दी एज एन एकेडमिक काउंसलर दे हैव ऑल द राइट्स टू डू द सेम, कि अगर आप अपने असाइनमेंट्स में ऑनेस्ट नहीं हैं तो आपको आपके जो ग्रेड्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। मुझे लगता है मैंने जो मेजर डाउट्स कॉमन मुझे इन द एयर आई कैन सी फील, वो मैंने आपसे एड्रेस किए हैं। इवन देन यू हैव सम एडिशनल डाउट्स और क्वेरी, यू प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल इनवाइट यू टू इंट्रोड्यूस द सेम। इंडिविजुअली आप अपने जो डाउट्स हैं प्लीज दें, एंड यू कैन टेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस सेशन। Yes, please, Anima ji. सर एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरा स्टडी सेंटर डिफरेंट था, तो वो जब असाइनमेंट मैंने सबमिट कर दिया उसके बाद उन्होंने ये दयाल सिंह को स्टडी सेंटर अलॉट किया मेरा, तो मैंने वो कहीं और सबमिट किया था। बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, क्या मुझे अभी भी मेरे सारे असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर देने चाहिए दयाल सिंह के वेबसाइट पे? देखिए, आमतौर पे जो असाइनमेंट आप सबमिट करते हैं वो सिस्टम में रहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपने किसी दूसरे स्टडी सेंटर में किया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो इवैल्यूएट करा के उसको आगे फॉरवर्ड करें, या हो सकता है कि वो उसको रीजनल सेंटर भेज दें, वहाँ से हमारे पास आ जाएँ, घूमते फिरते मतलब वो चलें। तो और देखिए, जब तक मैं इसको सेफर साइड में कहूँगा ना, तो इसके लिए कोई फीस एप्लीकेबल है कि भई आपको इस काम के लिए फीस पे करनी होगी, है ना? तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, अगर आपको उसको सबमिट करने का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप उसको सबमिट कर दें। मुझे नहीं लगता कोई गलत है। अगर उसके लिए कोई फीस होती तो आपको सोचना पड़ता कि मैंने वहाँ फीस सबमिट कर दी, यहाँ फीस करनी होगी। तो मतलब ऑन द सेफर साइड कोई ऑप्शन गलत नहीं है। बाकी मैं आपको अदरवाइज सर कॉन्फिडेंटली कह सक जी, कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि जो सिस्टम में आप सबमिट करते हैं, इट इज़ इन द सिस्टम। ये हो सकता है कि वो मे बी इन द पाइपलाइन इधर से उधर घूम रहा हो, या हो सकता है वो उसको अपना लॉजिकल एंड मिल गया हो, ऐसा भी हो सकता है। आप सबमिट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर एक ही बार चढ़ेंगे। ओके सर। एंड सर हॉल टिकट का पूछना था सर। अभी देखिए, अभी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे मैंने नोटिस किया था, मतलब मैं उसको इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिक या इस तरह से नहीं कह रहा हूँ किसी भी तरीके से। शायद कुछ लोगों ने ग्रुप वगैरह में शेयर किया था कि जो लोग एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए शायद यूनिवर्सिटी अलग से चांस देगी वगैरह वगैरह, वो फिजिकली फॉर्म फिल कर सकते हैं वगैरह वगैरह, जिनके एग्जामिनेशन सेंटर सही नहीं है वो चेंज कर सकते हैं, है ना? इस तरह की बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे थे। मैं नहीं जानता हूँ मैसेज सही थे या गलत थे। तो अभी सबसे पहले आपको ये देखिएगा आपकी एग्जामिनेशन है कब से, डेट शीट कब से है। तो डेट शीट के बारे में 2 चीज़ें कहूँगा कि आमतौर पे डेट शीट सबसे पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट शीट आती है जिसको कहा जाता है टेंटेटिव डेट शीट। तो टेंटेटिव डेट शीट जो होती है वो मतलब उसके बाद किन्हीं को कोई क्वेरीज हो, कोई ऑब्जेक्शंस हो, वो इनवाइट किए जाते हैं, और यूनिवर्सिटी रीअसेस करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ओवरलैपिंग एग्जामिनेशन बन गया हो, या किसी रीजन में कोई छुट्टी है वो डेट बन गई होगी, तो वो टेंटेटिव जो है
चेंज हो सकती है, तो उसके लिए आप भी अपनी तरफ से जो भी इनपुट हो वो शेयर कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी कंसिडर करती है टू ऑल दो सबमिशंस। तो ये तो रही डेट शीट की बात। तो अब डेट शीट बनने के बाद अगला स्टेप होता है कि जैसे आपने अभी जिस टाइम एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था उस टाइम आप किसी एक जगह पर थे सिटी में। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो आपके पास लिबर्टी है कि आप सपोज मार्च में एग्जाम होने थे और आपको पता था कि मार्च के आसपास आप जो है शायद कोलकाता जाएंगे, तो आपके पास फ्रीडम है कि इवन इफ यू हैव स्टडी सेंटर इन दिल्ली यू कैन हैव योर एग्जामिनेशन सेंटर इन कोलकाता। ठीक है, उसके लिए कोई परेशानी की नहीं है, तो इतनी फ्लेक्सिबल सिस्टम है। और उसके बाद आपको लगता है कि सेकंड सेमेस्टर में आप जो है शिमला जाएंगे, तो आप सेकंड सेमेस्टर में अपना एग्जामिनेशन सेंटर शिमला का भर सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है। जहाँ तक हॉल टिकट की बात है, तो हॉल टिकट के लिए इम्पेशेंट मत हो जाइए। अभी आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन अभी दूर हैं, लगभग पहला एग्जाम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मार्च होगा, तो उससे 2-3 दिन पहले के आसपास तक का वेट करिए। हो सकता है पहले अपलोड हो जाए, लेकिन 2-3 दिन पहले का वेट कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अपडेट होते होते टाइम लगता है। और ये इन्फॉर्मेशन जो है, जैसा जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर बार इस इन्फॉर्मेशन के लिए ऑथेंटिक सोर्स इग्नू की वेबसाइट है। तो ना मुझ पे भरोसा कीजिए, ना पड़ोसी पर, ना व्हाट्सएप ग्रुप पर, सिर्फ जो इग्नू की वेबसाइट है उस पर भरोसा करिए। वहाँ पर आमतौर पे जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लैश होती है फर्स्ट पेज पर ही कि भाई हॉल टिकट्स आर रेडी, एग्जामिनेशंस आर ऑन दैट डेट। तो आप रीजनल सेंटर या फिर आप जो मेन वेबसाइट है उसको फॉलो करते रहिए, क्योंकि जो वेबसाइट्स हैं उनको भी ह्यूमन ही अपडेट करता है। अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट करें कि भाई हमारे सेंटर की वेबसाइट पे भी वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी जो इग्नू की साइट पर होगी, तो उसमें हमें टाइम लगता है। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो या जनरेशन है वो इग्नू की वेबसाइट है। तो आप इग्नू की वेबसाइट पर देखिए, वहाँ पर मैसेज आएगा हॉल टिकट्स आर रिलीज्ड। ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन से, जब भी आपका एग्जामिनेशन है उससे 3-4 दिन पहले तो आ ही जाएगी। तो अभी से अगर आपको हॉल टिकट मिल भी गया तो अभी करना क्या है आपको, ये बताइए। वो तो प्रिंट ले लोगे, खो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा तो एग्जामिनेशन में यू नीड टू कैरी विद यू इग्नू आईडी कार्ड एंड हॉल टिकट्स। तो 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इग्नू आईडी कार्ड एंड हॉल टिकट। Remember again, you need to carry IGNOU hall ticket as well as IGNOU ID card. ठीक है, कुछ एग्जामिनेशन सेंटर इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अगर इग्नू का आईडी कार्ड नहीं है तो दे विल नॉट अलाउ यू। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। एनी अदर क्वेरी? No, sir. Okay, so is it no for all or it's no for some? सर नेक्स्ट सेशन में ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी क्लासेस? यार ये तो भविष्य की घटना है, इसको तो ज्योतिषी का तोता भी नहीं बता सकता, मैं कैसे बताऊंगा। नहीं, वैसे कॉलेजेस और स्कूल्स ओपन हो गए ना दिल्ली के ऑलमोस्ट। देखो अभी स्थिति ये है कि कुछ चीजें कंपल्शन में ओपन हुई हैं। ठीक है, तो अब अभी अगर ये सेफ है, डिस्टेंस बनाकर रखोगे, सुरक्षित रहोगे। और जिस उसमें ऑप्शन रहा कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन की जरूरत हुई और फिजिबल रहा, तो जैसे इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको फॉलो किया जाएगा। एज ऑफ नाउ अभी तो ऑनलाइन का ही प्लान है, क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन रीजनेबली फिजिबल है ज्यादा लोगों को। ओके सर। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? So before concluding, I invite अश्लेष सक्सेना जी कि अगर कोई ऐसा लगता है कि मैं मिस कर गया हूँ टॉपिक या कोई पॉइंट, तो प्लीज ऐड कर दीजिए, तो उसके बाद हम लोग आज की मीटिंग कंक्लूड करते हैं। हाँ कृष्णा जी, कृष्णा डावर। I wanted to confirm we usually have Saturday, Sunday classes, or is it just once in a while? Because I did not attend any classes since December. I did not get any invite for any classes. Okay. This is the first time I am interacting with any of the faculty member clear my doubt. ओके, सो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जब फिजिकल मोड में क्लासेस होती थी, सेशन होता था, हम लोग सिर्फ संडे को फंक्शनल होते थे।
उसके बाद जब ये लॉकडाउन का सिनेरियो हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन मोड को स्विच किया। और ऑनलाइन मोड में आपने स्विच करने के बाद भी क्योंकि एक लिमिटेशन होती है कि आप लोग कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, वो क्या लिमिटेशंस हैं, क्या फिजिबिलिटी है, तो उसमें भी कुछ कंडीशंस आती हैं। तो उसको देखते हुए सब्सिक्वेंटली हम ऑनलाइन मोड में स्टिक किए, और ऑनलाइन मोड में स्टिक करने के बाद उसको स्टेबलाइज भी करना होता है। तो स्टेबलाइज इन द सेंस कि आप किस दिन क्लास लेंगे नहीं लेंगे, किस दिन सेशन हो सकता है नहीं हो सकता है। नॉर्मल चूंकि हम संडे को रखते हैं, लेकिन अभी जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हमारे में से काफ़ी सारे लोग जो है वर्किंग हो सकते हैं। जो इग्नू का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली वर्किंग लोग जो हैं पार्ट टाइम अपनी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए इन कोर्सेज को करते हैं, प्रोग्राम्स को करते हैं। तो जो वर्किंग बंदा होता है उसका जो वर्किंग आवर्स होता है वो आइडियली ये माना जाता है 10 से 5 के आसपास का होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, और दूसरा संडे को अगर देखें तो सिर्फ 52 संडेज हो सकते हैं पूरे साल में। तीसरा जो डेट्स हैं, जो एडमिशन्स की डेट्स हैं, वो आमतौर पे शिफ्ट होती जाती हैं। तो उसके चलते हुए जो नंबर ऑफ डेज अवेलेबल हैं फॉर इंटरेक्शन वो रीजनेबली कम हो जाते हैं, लगभग 20 संडे के आसपास हो जाते हैं, 15-20 संडे के आसपास हो जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक प्लान किया गया था कि हम लोग वर्किंग डेज में भी मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट्स में सेशन रखें, केयरफुली ध्यान रखते हुए कि जो मैक्सिमम लोग हैं उसको अटेंड कर पाएँ। आपके जो कोर्सेज़ हैं उसमें से कौन-सा कोर्स आपके लिए हेवी लग रहा है, कौन-सा आपके लिए आपको केक वॉक है टाइप का है। तो हम लोगों ने स्लॉटेड वे में, क्योंकि जैसा आपका एडमिशन है, अगर आप इसको रियलाइज़ करेंगे, पूरे साइकिल को रियलाइज़ करेंगे, तो आपके जुलाई वाले एडमिशन है आमतौर पे जुलाई अगस्त तक खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और अभी सही चेक करोगे तो और देर तक जाकर एडमिशन हुए हैं। जैसे-जैसे आपके एडमिशन होते गए वैसे-वैसे हमारे पास डाटा आता गया। अभी आप यकीन करिएगा कि कुछ स्टूडेंट्स का जो डाटा है मेरे पास अराउंड लास्ट वीक आया है। तो जैसे-जैसे मेरे पास डाटा आता गया मैं उनके लिए सेशंस को प्लान करता गया। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखी थी कि जो आपके मुश्किल पेपर हैं, जैसा आपका डाइवर्स ग्रुप है, तो हम लोग ये मतलब सुपरफिशियली ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। तो जैसे आपका एक ऑपरेशन से रिलेटेड पेपर हुआ करता है, कोर्स हुआ करता है, तो मैं स्टैट से रिलेटेड कोर्स हो सकता है, तो वो कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम करता है। तो मैं अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड भी जो हमारे काउंसलर्स हैं वो मतलब इन द सेंस समझिए कि फाइनेंस की पावर ना तो मेरे पास है, ना किसी के पास है, लेकिन पर्सनल रिलेशंस हैं। तो उसके चलते हुए कि अगर एक्स्ट्रा सेशन भी देने पड़े तो मेरे जो कलीग्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, स्पेशली फॉर दी टफ पेपर्स, जिनको मैं टफ वर्ड यूज़ करूँगा। टफ इन द सेंस कि जो नॉन मैथ्स ग्रुप का बंदा है उसके लिए स्टैटिस्टिक्स टफ होगी, या जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का या कॉमर्स बैकग्राउंड का है उसके लिए अकाउंटिंग्स या इस तरह के पेपर शायद टफ हो सकते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम उसको केयरफुली रखते हैं कि हाँ भाई, इनको इसके लिए मैं एक्स्ट्रा स्पेस दूँगा। तो जैसे अभी आप फाइनेंस का नोटिस कर रहे हो, तो फाइनेंस का मैंने स्पेसिफिकली ये ध्यान में रखते हुए कि भई इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है, और उससे पहले आपके पास बुक्स आ जानी चाहिए, क्योंकि आप खुद ही नोटिस करिएगा कि आपके पास सभी के पास बुक्स जो हैं इमीडिएटली नहीं आई होंगी, काफ़ी टाइम के बाद आई हैं। तो आपके पास अपनी अपॉर्च्युनिटी आ गई, यानी कि बुक आ गई, उसमें से आपने थोड़े बहुत हाथ-पैर मारा, खुद मेहनत की। स्टिल आपको लगता है कुछ डाउट होता है, तो आपने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद आपको इसको लेकर अलग से सेशन ऑर्गेनाइज़ कराएँ। तो उसी तरह का पैटर्न हम आगे भी रखेंगे कि आपको जो आपके टफ पेपर्स हैं, जो आपके लिए थियोरेटिकल पेपर हैं, आपको लगता है आप कर सकते हो, तो उनके लिए आपको जैसे कन्वीनिएंट सेशन होगा वो हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। दूसरा एक और चीज़ थी, हम लोग भी डेट्स के एग्ज़ामिनेशन डेट के बारे में श्योर नहीं थे कि कब शुरू होगा। तो जैसे हमें आइडिया लगा कि ये डेट है आपका इस कोर्स का एग्ज़ाम एग्ज़ैक्टली उस डेट को होना है, तो उसके बीच का मैंने रीज़नेबल टाइम दिया है। तो हमारे जो काउंसलर हैं वो भी अवेलेबल रहेंगे, अगर आपको संडे के दिन में ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा। आपका यही स्लॉट आपके लिए कन्वीनिएंट है, 5:30 के आसपास का, ये आपके लिए अलॉट कर देंगे। तो हमारे एंड से कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो बेस्ट बेस्ट पॉसिबल वे में एड्रेस कर पाएँ, यही मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ और यही करते हैं। जैसे अश्लेष जी हैं, इनके पास ऑपरेशन का पेपर आता है, ये एक फॉर्मली एमएस शायद एमएमपीसी 5 है अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। तो वो भी उस तरह का टफ पेपर होता है कुछ लोगों के लिए।
तो उसके लिए भी हम अलग से सेशन रखते हैं कि हाँ भाई, अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंडेटरी हम आपको 6 करा सकते हैं, तो सर 7वां सेशन लेने के लिए वॉलंटरीली तैयार रहते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी तरफ से। So will it be for second semester, will it be the same? Because usually we face problem for the first semester because उस time admission होता है. But for the second semester, we are the only people who will be going to the second semester, right? Or Yes, will yes. be there? Sorry, We can expect your connection was broken. I'm sorry. Yes. Please repeat your query. I'm saying for the second semester, we are the only ones who will be having the who will be going to the second semester, because there will be no admission for the new admissions for the second semester. So can I expect it to be a little more smoother than the first semester? Okay. So उसका आंसर बहुत सिंपल है। सिंपल आंसर इस तरह से है कि हमारी जो भी एक्टिविटी शुरू होती है, उस एक्टिविटी का कनेक्शन है डाटा से। तो अभी अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपके उसमें ग्रुप में अराउंड मैं अगर सही कनेक्ट कर रहा हूँ तो 300 प्लस एडमिशंस हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। हो सकता है कि वो बहुत बड़े अधिकतर सेंटर्स को हमारे यहाँ कनेक्ट कर दिया गया हो। तो अब इनको ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर। आपको सेकंड सेमेस्टर में जाने के लिए री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप अपने ग्रुप में ही चेक कर लीजिए कितने लोगों ने री रजिस्ट्रेशन किया है। तो अगर उन 300 या 400 में से ये जितने भी हैं, उसमें से अगर सिर्फ 100 लोगों ने री रजिस्ट्रेशन किया, तो हमारे पास जो फर्स्ट हैंड डाटा आएगा उन्हीं का डाटा आएगा री रजिस्ट्रेशन का। तो अगर हमारे पास वो जो डाटा आएगा जितने लोगों का, उनका हम स्मूथली चालू कर देंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। Okay. Anyone else? All the queries attended, or I request Ashlesh ji. Thanks, Dr. Arya. And students, I just want to say one thing. The summary of the session is, please follow university website, that is www.ignu.ac.in, for any information. Please don't follow any information on WhatsApp, Twitter, whatsoever. Either you follow RC1 website or IGNU website. Rest, Dr. Arya is working wholeheartedly to provide you, to support you all with error-free conditions. But again, he has, and everybody has, some or the other restrictions. The data is provided by the university and we are following the data. If any problem is there, please visit university website, whether it is related to your dispatch of material, either your hall ticket or any other information. And as far as your sessions and your support is concerned, we all are there with you. And wholeheartedly, we try to facilitate students. Our aim is to facilitate students, learners, because we are there to support you. We are not there to create a problem for you. We are just facilitating you to complete up your course. And we again have some or the other limitations. And I hope everybody, those who are present here, would have registered themselves for the second semester. And for the hall ticket, what you said, hall ticket will be made available minimum of 1 week before the examination. And you should not be worried about that. Whatever you have filled will be made available to you within 1 week before the examination. And if I'm not wrong, your papers are going to start from 4th or 7th. Before that, most probably in 2-3 days time, it will be made available on the university website, nowhere else.
you will get the information either at your registered mobile number, or you visit university website almost daily. You will see the hall ticket over there. Any other query the students want that it should be reported, it should be replied, and if you have missed anything. थैंक यू वेरी मच सर। जैसा सर ने आपसे शेयर किया, आप इग्नू की वेबसाइट देखते रहिए, कई बार उसमें इंटरेस्टिंग ऑप्शंस भी आते हैं, लाइक जॉब के ऑप्शन भी आ सकते हैं, शायद जॉब फेयर भी आ सकता है, कोई कंपटीशन भी आ सकता है जो एक्सक्लूसिवली इग्नू के स्टूडेंट्स को लेकर हो, जिसमें आप शायद कोई स्टार्टअप वगैरह का प्लान कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों की मीटिंग बहुत लंबी चली है अभी, और इट्स टाइम टू कंक्लूड। और मीन टाइम अगर आपको फ्यूचर में भी कभी लगता है इस तरह कोई सेशन होना चाहिए, तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट अस, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह का सेशन ऑर्गेनाइज करें। करेंटली मेरा प्लान है कि जो हम लोगों का इंटरेक्शन है इसको अपने जो सेंटर की का यूट्यूब चैनल है उस पर मैं अपडेट करूँगा, ताकि और लोग जिन्होंने अटेंड नहीं किया उनके लिए हेल्पफुल रहे। और इसी तरह का और भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है जिस पे आप चाहते हैं डिस्कशन हो, उसको भी हम इसी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एज ए ग्रुप। So, with your permission, I'm just stopping the recording process. So thank you very much. Thank you, Dr. Thank you Aryan. thank you very much. Learners. Thank you so much, sir. Thank you, sir.